morning, everyone. So, welcome to this Genesis batch LRDI session. As I said, today we'll be starting a little early. So, I hope you would have seen my message over there. Yes, so once again, we are going to practice some really amazing caselets which will help you in your preparation for CAT or IPMAT or other MBA entrance exams like NMAT, SNAP, and all. Right. Hi, Trisha. Hello. Good evening. Sure. So, guys, let's begin with the session. Yeah. Okay. I think students are still joining. Right. So, guys, let me share the PPT quickly. Hi, Khushi. Hello. Hi, Gandhi. चलो आज एक पजल से शुरू करते हैं दोस्तों. एक पजल लेते हैं पहले, छोटा सा कोडिंग वाला पजल लेते हैं. ठीक है. But before that, just remember this code SHA10 and yeah, use it when you go for Plus or Iconic, and also participate in combat using the same code. Recommend your friends also. अगर वो फर्स्ट टाइम ऐप डाउनलोड करते तो उनको बताओ SHA10 से अनलॉक करे. ठीक है. शुभ मुहूर्त करे SHA10 से. आप ऐसे कह सकते हो, राइट? Hi guys. So yeah, and just to quickly remind you about the special price week. गाइस बहुत एडवांटेज मिल रहे हैं. एक तो जो भी प्राइस आपको मिलती है उसके ऊपर वो उसकी प्राइस 10% कम हो गई है. प्लस SHA10 से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. प्लस यू गेट एक्स्ट्रा मंथ्स आपको मिल रहे हैं. 6 पे 1, 12 पे 2 एंड 24 पे 3. सो गो फॉर दिस गाइस. सो कैट वाला भेजो भी ज्वाइन कर सकते हैं. ये कैट का ही तो है भाई. ये कैट के लिए तो है. सो कैट वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं जो अच्छे, मतलब आप किसी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो यार. इतना सिंपल याद रखो. अभी इसको क्लासिफाई क्या ही करें. ठीक है. हाँ, आईपीमैट वाले भी कर सकते हैं, कैट वाले भी कर सकते हैं. जिसको सीखना है सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. This price is valid up to 25th September. Guys, 25th September ये संडे तक वैलिड है. ठीक है. आई एम सॉरी, आई गॉट अ कॉल. हेलो. Yes. Okay. Sure. So, guys, yeah, and these are some of the new batches that are starting, and this is the group. So, please make sure you all have joined the Telegram group, guys. And this is my timing. So, join me at 6 p.m. Also, आज हम factorial करने वाले हैं 6 p.m. को, right? Okay. So, here is the first puzzle. This is a puzzle. Hi, Neeraj. Hi, Dheeraj.
Everyone, please give a try. Just a second. So many of you are saying option D. Is it? Okay, let's see. It's not option D. Chalo, select your answer over here in the poll. Everyone, please select your answer in the poll. आज मैं LRDI कराऊंगा जैसा मैं हर बार कराता हूं, पर पहले ये पजल ले रहा हूं. चलो, सो गाइस यहाँ पे लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक फॉर दिस पजल? एवरीवन, सो दिस इज द कोड फॉर रेशन, RATION, करेक्ट? सो R का अल्फाबेटिक पोजीशन क्या है? 18, तो उसमें 1 + 8 करो, कितना आएगा? 9. A का अल्फाबेटिक पोजीशन 1, उसको एज इट इज रखो. सो अल्टीमेटली यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इन अ सिंगल डिजिट नंबर. 20, तो 2 + 0 2 हो जाएगा, एंड सो एंड सो फोर्थ. सो इफ यू डू द सेम थिंग फॉर पिंक, तो कोड आपका ये आएगा. राइट, कोड आपका ये आएगा पिंक में, PINK. सो P16, तो 1 + 6 7, I9, तो एज इट इज, N14 है ना, तो 1 + 4 5, एंड सो एंड सो फोर्थ, K11, सो 2, 1 + 1 2. सो जो पोजीशन है उसके डिजिट का समेशन करना था. अगर सिंगल डिजिट है तो एज इट इज. अभी क्लियर एवरीवन? चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अ गेम. Okay, so here is a game. It's a nice puzzle to begin with. Take 2 minutes time to go through the data. Now, these are the kind of puzzle that you will have to try. You should start cracking, from this point of time onwards. No matter what exam are you preparing for. Yes, so this 3 boys and 3 girls are playing this game. Okay, and they are paired in 3 groups. Further, it is known that these are the numbers on the cards. So har ek ke paas ek card hai. Anu got less than what her partner got, but twice what Bhanu got. Pradeep and his partner got 20 less than the total amount received by all the pairs taken together, and so on and so forth. There are 5 points. Now let me create the poll so you will understand. In fact, I'll get to know कि आप में से कितने लोगों ने सही किया ये पजल को. See, all those who have just joined, guys, we have just started with a new puzzle. You have sufficient time. Quickly go through the data.
इट्स एन इजी पजल टू बिगिन विथ, ठीक है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, पहला क्वेश्चन तो इजी ही है, आप कर सकते हो इसको। हम्म, राइट, चलो गाइस, क्या ये क्वेश्चन के लिए हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि लुक एट दिस लाइन, एवरीवन लुक एट पॉइंट नंबर 3, प्रदीप एंड हिज पार्टनर गॉट 20 लेस देन द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अदर पेयर्स टुगेदर। ठीक है, तो गाइज ये जो 6 नंबर है उसमें से कोई 2 नंबर का टोटल जो है, ठीक है, वो बाकी के 4 नंबर के टोटल से 20 कम होना चाहिए, बाकी के 4 नंबर के टोटल से 20 कम होना चाहिए। कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस टू? इसमें से मैं इसको कैसे ग्रुपिंग करूंगा कि 2 का टोटल बाकी 4 के टोटल से 20 कम आए? कम ऑन एवरीवन, गिव अ थॉट, दिस इज अ वेरी सिंपल नंबर क्वेश्चन नाउ। Yes, so Mahi is saying के 8 plus 4 which is 12 and बाकी के नंबर कौन से है? 3 plus 6 plus 10 plus 13। अगर आप ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 32। Can I say this is 20 less than this one? Everyone, 32 minus 20 is 12. So the only possible way, the only amount that Pradeep and his partner can get is 12. But we do not know who is the partner of Pradeep. प्रदीप को कितना मिला है वो भी हमें नहीं पता है। Are you getting this point, everyone? So हमने पजल को कंप्लीटली सॉल्व ही नहीं किया है, वो तो आपको ही करना है, मैंने सिर्फ आपको पहला एक क्वेश्चन कराया है। Is there any other possibility? क्या कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें 2 नंबर का टोटल बाकी 4 नंबर के टोटल से 20 कम आए? Is there any other way? Just give a thought. Yes, yes or no? क्या कोई और तरीका है इसके अलावा? जल्दी से बताओ। जैसे हमने कहा कि 8 plus 4 is 12 and 3 plus 6 plus 10 plus 13 is 32, 32 minus 20 is 12। क्या कोई और कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है ना? ओके गाइस, अगर अगर यहां पे मैं ऐसा कहता कि इसकी जगह पे अगर, तो इसका आंसर तो ऑप्शन सी हो गया। अब हम अगर मगर की बातें करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि प्रदीप एंड हिज पार्टनर गॉट 30 लेस देन द टोटल अमाउंट, तो यहां पे 20 की जगह पे अगर मैं 30 कर देता हूं, बताओ कि प्रदीप एंड उसके पार्टनर को कितना मिलेगा? अगर मैं यहां पे 20 की जगह पे 30 कर देता हूं तो क्या हम अमाउंट निकाल सकते हैं प्रदीप एंड उसके पार्टनर का, या फिर वो नॉट पॉसिबल आ जाएगा? जल्दी से सोच के बताओ, टाइप करो आंसर चैट बॉक्स में। एंड दिस इज हाउ यू कैन डेवलप योर ब्रेन। Soumya is saying not possible, Gandhi is saying not possible, but Ritesh is saying 3 and 4। गाइस क्यों? देखो, अगर मैं मुझे अभी डिफरेंस और बढ़ाना है तो छोटे से छोटी वैल्यू में ट्राई करता हूं प्रदीप और उसके पार्टनर के लिए। 3 plus 4 7 ले लिया, और ये बाकी नंबर का टोटल करो कितना आ रहा है, देखो 6 plus 8 14 10 24 plus 13 37। Can I say this is 30 less than 37? पॉसिबल है कि नहीं? एब्सोल्युटली है ना। तो गाइस आपको ऐसे नंबर देके कुछ भी पूछा जा सकता है,
है ना, एंड योर माइंड शुड बी एबल टू फिगर आउट दैट। अब आप ये कहते हो कि सर ये नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सीधा रीजन है कि वी आर नॉट गुड एट नंबर्स। नंबर्स कैलकुलेशन हमारे माइंड में नहीं हो पा रहे हैं, तभी ये कॉम्बिनेशन आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? हाँ, चलो, so let's go ahead. Swami, I just created another combination that is possible, है ना? Right, चलो। Now guys, please try for this question. What is the amount received by Bhanu? अब ये आपको डेटा को देख के आपको बताना है कि भानु को कितना अमाउंट मिला है, राइट? ये आपको बताना है। थोड़ा सा स्मार्टली सोचोगे, आपको आंसर मिलेगा जैसे बाकी स्टूडेंट्स को मिल रहा है। P1 मतलब पार्टनर वन, ठीक है? सो पार्टनर वन, पार्टनर टू, तो पार्टनर वन में मैं ए बी सी को फिक्स कर देता हूं। मुझे एक चीज पता है कि प्रदीप और उसके पार्टनर को 4, हाँ देखो ये सारे गर्ल्स है, दिस आर गर्ल्स एवरीवन, राइट? और यहां पे हम बॉयज ले लेते हैं, ठीक है? अब मुझे एक चीज पता है कि प्रदीप और उसके पार्टनर को 4 and 8 चला गया है। डू यू अग्री विद दिस? प्रदीप एंड उसके पार्टनर को 4 and 8 चला गया है, तो 4 and 8 कोई एक वर्टिकल में आएगा। सपोज यहां पे 4 and 8 ले लिया, या यहां पे ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो। तो आपको क्या कहा है, लुक एट दिस वन, ठीक है? राइट, अनु गॉट लेस देन व्हाट हर पार्टनर गॉट बट ट्वाइस व्हाट भानु गॉट। अनु के पास भानु से डबल पैसा है, तो अगर भानु के पास 4 है तो अनु के पास 8 होना चाहिए, बट ये हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रदीप और उसके पार्टनर के पास 4 and 8 चला गया है, तो दिस इज एलिमिनेटेड। तो विच इज द ओनली अदर पेयर ऑफ वैल्यूज वेयर वन वैल्यू इज डबल ऑफ अनदर? कैन आई से इट इज जस्ट 3 and 6? तो भानु के पास 3 होना चाहिए, तो अनु के पास 6 होगा। क्या ये समझ में आया दोस्तों? सो द ओनली पॉसिबल अमाउंट फॉर भानु इज 3। सीधा ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, ए, राइट? करेक्ट। तो ये क्वेश्चन के लिए भी आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, है ना? तो अभी तक हमने केसलेट पूरा सॉल्व नहीं किया है, राइट? नाउ यू विल रिक्वायर टू प्रॉब्ली सॉल्व दैट। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द पार्टनर ऑफ नरेश? अब ये आपको पता करना पड़ेगा कि नरेश का पार्टनर कौन होगा, ठीक है? सो गिव अ ट्राई, पूरा सॉल्व करो अच्छे से। इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड गाइस। थोड़े से कुछ कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करने होंगे एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द वैल्यूज। हमें फिर से पता चल गया है ए बी एंड सी, यहां पे 3 है, यहां पे 6 है। अब इनके पार्टनर कौन है वो हमें नहीं पता है, ठीक है? हमें एक और चीज पता है कि प्रदीप और उसके पार्टनर के पास 8448 है ना? 8448 है, ये हमें पता है। गाइस सॉरी, इनकरेक्ट पोल था। आई एम स्टार्टिंग दैट वंस अगेन। हाँ, आई एम स्टार्टिंग इट वंस अगेन।
पता नहीं आप लोगों ने कैसे, कुछ लोगों ने टिक किया था। एक बार वापस शुरू करता हूं, प्लीज सिलेक्ट योर आंसर। दैट वाज मिसफायर्ड, आई जस्ट रियलाइज्ड। ओके, सो हम एक काम करते हैं, इसके बाद वाले 2 क्वेश्चन में पहले पोल क्रिएट कर देता हूं, फिर उसको पूरा सॉल्व करते हैं। सो इफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर, प्लीज टिक मार्क द आंसर फॉर दिस। इफ यू कुड सॉल्व इट, जल्दी से इसको आंसर करो, फिर हम पूरा केसलेट डिस्कस करते हैं। या चलो, okay, and let's try for one last question. Let's be sure. नहीं, रॉन्ग ऑप्शन है क्या? विल सी, विल सी। ठीक है गाइस, सॉल्व करते हैं ना, फिर डिस्कस करेंगे ना। सॉल्व करते हैं फिर डिस्कस करते हैं, चलो। अरे रितेश चुप हो जाओ, अभी कितना खींचोगे? पता चल जाएगा ना अभी, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड। अच्छा चलो, लेट्स एनालाइज द कंप्लीट केसलेट एवरीवन। सो अनु गॉट लेस देन व्हाट हर पार्टनर गॉट बट ट्वाइस व्हाट भानु गॉट। तो यहां पे ये पता चल गया ना, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर अनुज पार्टनर। अनु के पार्टनर के पास क्या वैल्यू हो सकती है? तो कहने से 8 तो प्रदीप के पास में, तो 8 तो नहीं आएगा, तो 10 या 13 में से कोई एक वैल्यू यहां पे आएगी अनु के पार्टनर के पास। यू ऑल अग्री विद दिस एवरीवन? Then Pradeep and his partner got 20 less than this one, that is sorted. Difference between the, now look at this one. Now this is very important point. Difference between the amounts received by Bhanu, वो तो 3 है, and Pradeep, and amount received by Pradeep and Naresh is the same. मतलब 3, then यहाँ पे प्रदीप आएगा, ये भानु है और नरेश, ये डिफरेंस हमें सेम रखना है गाइस। द ओनली वे वी कैन डू इट इज बाय टेकिंग 8 and 13 ओवर हियर। क्या ये आप अग्री करते हो? ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि प्रदीप के पास 8 है और नरेश के पास 13 है। ठीक है, नरेश के पास 13 है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, भानु, प्रदीप एंड नरेश के वैल्यूज हमें पता चल गए। नाउ लुक एट दिस वन, महेश एंड हिज पार्टनर टुगेदर रिसीव द सेम अमाउंट एज दैट रिसीव्ड बाय वन अमंग द अदर पर्संस। ठीक है, अब यहां पे 6 + 4 10 हो सकता था, बट 4 तो यहां पे चला गया है, तो 4 तो प्रदीप के साथ में है, तो महेश एंड उसके पार्टनर के पास कौन सा हो सकता है? तो कहने से द ओनली वैल्यू इज 10 and 13।
राइट? तो कहना से यहां पे महेश होना चाहिए, सॉरी भानु के साथ में महेश होना चाहिए, ये सुनो, भानु के साथ में महेश होना चाहिए और उसके पास 10 होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इसके पास 13 आ जाएगा। तो महेश और उसके पार्टनर के पास, सी महेश एंड हिज पार्टनर टुगेदर रिसीव द सेम अमाउंट एज दैट रिसीव्ड बाय वन अमंग द अदर पर्सन। महेश और उसका पार्टनर भानु है, उनके पास टोटल 13 हुआ, करेक्ट? एक ही एक चीज घुमा रहे हो आप लोग, सुमित थोड़ा ध्यान रखो। तो गाइज इससे हमें पता चल गया कि 8-4 वाला कहां पे आ जाएगा, यहां पे। तो प्रदीप यहां पे आ जाएगा और उसका पार्टनर ये है, प्रदीप के पास 8 है, उसके पार्टनर के पास 4 है। नाउ दिस इज द कंप्लीट टेबल, ये हमारा कंप्लीट टेबल है। यहां पे कौन आ जाएगा जो बचा था वो, हु इज लेफ्ट गाइस? सो नरेश। तो अभी ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। अभी इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, राइट? So let's look at other answers. What is the total amount received by B, A and P? So guys B, A and P 17 हो गया टोटल, तो ये 17 आ गया। Then who got the card with number 13 with it? So 13 किसके पास है? नरेश के पास है, ठीक है? So 13 should be नरेश। हाँ, हमने कौन सा पोल टिक किया था? हाँ, सी पोल टिक किया था क्या? हाँ, तो वो गलत है, इट शुड बी नरेश। अहेश, रितेश इज राइटिंग अहेश, ओके, ठीक है गाइस। तो या बट नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट ना, व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ करेक्ट, लेट्स गो अहेड। So yeah, let's go ahead with the next set. Now next set is, this was a logical puzzle, okay, this was more of logical. Now we'll take slightly calculation based, तो वो भी अच्छा है। But before that, join me at 6 PM without fail। हाँ, factorial करने वाला है। And yeah, price week guys, just to remind you, don't forget to use code CHART and go for that। 25th से पहले ले लेना, 2 years का, 1 years का, आइकनिक प्लस जो भी लेना है ले सकते हो, राइट? गाइस एक पजल ले लेते हैं बिफोर वी टेक अप द नेक्स्ट सेट। कैन यू प्लीज ट्राई फॉर दिस? दिस इज अ टफ पजल, लेट्स सी। Before we take up the next caselet, let's try for this. Yeah, so 50% students have answered this correctly. 50% ने करेक्ट आंसर किया। अविनाश, अगर ये इतना इजी होता तो 80% करेक्टली आंसर ना करते, ठीक है? सो अगर आपको समझ में आ गया तो इजी लगेगा, नहीं आया तो ये नहीं सॉल्व होगा। क्या है गाइस, व्हाट इज द लॉजिक? कैन यू मेंशन इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द लॉजिक फॉर दिस? कम ऑन। हाँ, क्या लॉजिक है एवरीवन? कंपेयर नहीं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में है। यू हैव अरेंज्ड लेटर्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है ना? देखो मदर में ई सबसे पहले आया, फिर एच, फिर एम, ओ, आर, टी। सिमिलरली दिस वन, सो ब्रदर के लिए सबसे पहला कौन सा आएगा? बी वाला पहला आएगा, सो ये ऑप्शन निकल गए। फिर बी के बाद में ई, तो ये ऑप्शन निकल गया। वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन ऑप्शन, डन। एक बार आपको क्लू मिल गया तो आसान था, राइट? चलो ट्राई फॉर दिस सिमिलर वे।
I'm sure we'll start getting some very quick answers. गाइस मैं जल्दी से आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक यहाँ पे पोस्ट कर देता हूं। अगर आप अभी तक ग्रुप में नहीं हो तो प्लीज ज्वाइन इट क्विकली। हियर इज द ग्रुप लिंक, मैंने पिन किया हुआ है, सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स अबाउट माय सेशंस। कल 12 बजे सेशन रहेगा ज्योमेट्री का सेकंड सेशन। अगर आपको ज्योमेट्री सीखता है, मैंने आज से ही शुरू किया है। कहाँ पे फ्री क्लास है, लेकिन वो आईपी मैट कैटेगरी में है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो 12 बजे। तो आज का सेशन देख लेना। नो, रिवर्स नहीं है। देखो गाइज, इसमें क्या किया है, TRAIN, तो हमने क्या किया इसको, ठीक है, इसको दो का ग्रुप बनाया, इसको ग्रुप बनाया, इसको ग्रुप बनाया और उसको शफल कर दिया, RTIAN, करेक्ट। हाँ, फिर सिमिलरली प्लेन में PL को इंटरचेंज किया, AN को इंटरचेंज किया, A को एज इट इज रखा। तो यहां पे मोबाइल में क्या होगा, OM पहले इंटरचेंज किया, फिर BI तो IB किया, LE का EL किया, ठीक है ना। तो आंसर इज ऑप्शन दिस वन। अभी क्लियर? एग्जैक्टली, है ना, राइट, एग्जैक्टली। आप लोग है ना एग्जैक्टली बोलोगे, राइट। चलो, क्योंकि कोडिंग लैंग्वेज है इसलिए, है ना। या नाउ डिकोड दिस वन, दिस इज अ गुड वन। एक सेकेंड, लेट मी सी कितने लोग इसको डिकोड कर पा रहे हैं। ओ, बंद हो गया पोल, लेट मी जस्ट रिक्रिएट। हाँ, मजा आता है ऐसे भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने में, है ना गाइस। आप लोग अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे, है ना, तो मैंने आपकी बंदूक का नला आपकी तरफ ही मोड़ दिया। हो गए अब आप छल्ली छल्ली। तो जरा सोच के करो ना। तुम नहीं हो ऐसा। ओके, राइट। देखो मैंने क्या किया, जानबूझ के ऑप्शन बी सिलेक्ट करके पोल शुरू किया और फिर मैंने उसको जानबूझ के बंद कर दिया। तो आपको ऐसा लगा अच्छा पोल चला गया, कोई टेक्निकल इश्यू होगा, और सब लोगों को आंसर दिख गया। अभी सब लोग लग पड़े, बट ये नहीं सोचते कि मैं सही आंसर को टिक करूं, ठीक है। चलो, या लेट्स सी। तो गाइज ऐसे में काफी सारी चीजें करता रहता हूं, बी केयरफुल। दिस इज 961 इज 31 into 32, ठीक है, सॉरी 31 into 31, 961। तो गाइज 31 into 32 क्या आएगा, 992 आएगा, करेक्ट दोस्तों, ये समझ में आया। तो सिमिलरली आप करोगे इसके लिए 1849 क्या है गाइज, 1849 भी तो स्क्वायर है ना। किसका स्क्वायर है, 43 का स्क्वायर है कि नहीं। 43 into 43 is 1849। तो फिर हम क्या करेंगे, 43 into 44 कर देंगे, तो कितना आएगा 1892। वेरी सिंपल। कैसे ऑप्शन ए आ सकता है, कौन कह रहा था ऑप्शन ए आएगा, राइट। देखो आप स्क्वायर, जब भी आपके सामने कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ना दोस्तों, बहुत ही आसान है पता करना कि वो कौन से नंबर का स्क्वायर है। यू नो आप क्या करोगे, या तो नंबर को देखो पहले तो 50 का स्क्वायर
2500 होता है। तो अगर मैं आपको देता हूं 1849, मैं अगर आपको देता हूं 1849, डेफिनेटली वो 50 से तो कम ही है, और लास्ट में 49 आ रहा है, मतलब 7 कम होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? राइट। जैसे अगर मैं देता हूं 1936, किसका स्क्वायर है? 36 किसका स्क्वायर है? 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो ये नंबर 50 से 6 कम होगा, 44 होगा। अगर मैं आपको नंबर देता हूं, सपोज एक नंबर आपको देता हूं, ठीक है, लेट मी गिव यू अ नाइस नंबर, 3721। बताओगे? अब ये 50 से तो ज्यादा ही है। तो गाइस 21 लास्ट में कौन से नंबर के स्क्वायर में 21 आता है? 11 के स्क्वायर में 21 आता है, 121। तो 50 में 11 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। जब आपको पता है कि दिस नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर कोई आपको ऐसे कुछ लिख के दे देगा 4521 और आप कहोगे अच्छा ये 11 का स्क्वायर है, ऐसे नहीं हो सकता, ये कोई स्क्वायर नहीं है, राइट? तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। जितना आपका मैथ्स अच्छा होगा ना, ये सब मैंने बेसिक्स में सिखाया हुआ है, राइट? तो ये सब वर्क करोगे तो लॉजिक में भी फायदा होगा, especially in exam like SNAP, DUJET, NMAT or SAT and all. Okay, chalo. So guys, here is a new caselet. Are you able to read these values? 37, 35, 30, 30, ये सब values पढ़ रहे हैं सबको clearly? कोई issue नहीं है ना? Right. तो go through the data and then I'll start with the poll. Yes, so I'm sure all of you have read the data. Guys, 2000, 2001, 2 and 3, ठीक है, हर एक साल 10% कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। और 2000 में जो भी प्रोडक्शन था, सपोज 100 था, तो उसमें से 23 मिलियन टन इसका था प्रोडक्ट। कौन सा था? प्रोडक्ट ए का। फिर 57 प्रोडक्ट बी एंड सो एंड सो फोर्थ, सॉरी 37 प्रोडक्ट बी एंड सो एंड सो फोर्थ। तो आपको पूछा है व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ सी इन 2002 इफ द प्रोडक्शन ऑफ द फर्म इन 2000 वाज 1200 मिलियन टन। ठीक है, तो आपको ये पता करना है। For this question, for timing, if you want, you can use calculator. मतलब मुझे नहीं लग रहा है कैलकुलेटर की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। Yes. Okay. So guys, the answer is this one. Now let's understand how can we do this thing. आपको क्या बताया? 2000 में कंपनी का प्रोडक्शन 1200 था। कैन आई से ये 10% एंड 10% इंक्रीज हो जाएगा? तो यहाँ पे 2002 में कितना हो जाएगा? आपको 2002 का निकाला है। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्शन इन 2002? यहाँ पे 10% इंक्रीज किया, 1320। ठीक है, नहीं ये तो 2001 का है, और ये कितना आ जाएगा? उसको भी 132 से इंक्रीज करो, 1452 आएगा। नहीं, इसमें हर एक क्वेश्चन अलग है, एक दूसरे से सारे क्वेश्चन अलग है, तो इट हैज नथिंग टू डू कि मैंने ये क्वेश्चन कराया तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो गाइस 1452, हमें क्या पूछा? व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ सी इन 2002? तो ये कितना है? 30%। व्हाट इज 30%?
ऑफ 1452। सो गाइज आप रफली कर लो, मतलब 145 का 145 इंटू 3 कितना होता है? ठीक है, 435 होता है कि नहीं? तो 435.6। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 435.6। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। कर सकते हो सब लोग दोस्तों? यस, शैल गो टू नेक्स्ट वन? ओके, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वन। या चलो मैं फिर से रिकमेंड करूंगा गाइज, नहीं आता है क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट करो, लेकिन तुक्केबाजी मत करो, तुक्केबाजी मत करो, ठीक है? दैट विल एक्चुअली स्पॉइल योर प्रिपरेशन। आपको अंदाजा नहीं है, बट उससे बहुत आपको हार्म होगा। राइट, चलो। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ रिवर्स क्वेश्चन। आपको दिया है इफ द प्रोडक्शन ऑफ सी इन 2001 इज 242। गाइस सपोज 2001 में टोटल प्रोडक्शन 100x है, ठीक है? तो सी का कितना होगा? 22x, ठीक है? सी का कितना होगा? 22x होगा कि नहीं एवरीवन? अगर 2001 में टोटल प्रोडक्शन 100x है तो उसमें से सी का 22% मतलब 22x होना चाहिए, और वो हमें दिया है 242। सो आई कैन से 22x इज 242, राइट? तो 100x कितना आ जाएगा? तो यहां पे 100x कितना आ जाएगा गाइस, बताओगे? ये देखो, इट इज कैन आई से इट्स गोइंग टू बी 1100? या एब्सोल्युटली 1100। यस और नो एवरीवन? यस। तो मुझे यहां पे 1100 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन मिल गया, विच इज 10% मोर देन दिस वन। तो कहने से यहां पे 1000 मेट्रिक टन होना चाहिए, क्योंकि 2000 से 2001 प्रोडक्शन आपका 10% इंक्रीज हुआ था, तो यहां पे 1000 मेट्रिक टन होना चाहिए। अब मैं पूछा है कि व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ डी इन 2000? डी वाज 20% ऑफ दिस वन, तो कितना आ जाएगा? 200 आएगा कि नहीं? बहुत ही कंफर्टेबल वैल्यूज दिए थे, आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हो। पर जिसको तुक्के ही मारने हैं वो सोचेगा सर ने पहली बार कैन नॉट बी डिटरमाइन आया, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन ही होता है, ठीक है? जहां पे दिमाग लगाना है वहां तो लगाएंगे नहीं, और यहां वहां लगाते बैठेंगे, राइट? यहां पे 22 दिखा तो यहां पे 22 दिखा तो मैच कर लिया। यू नो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स डू गाइस। आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर मेनी इयर्स एंड आई हैव क्लोजली अंडरस्टूड देम कि लोग कैसे सोचते हैं, उनकी लाइफ ही ऐसे जाती है, ठीक है ना? जैसे वो कहते हैं ना, किसी ने अपनी तरफ देख लिया मतलब वो हो गया, मामला सेट हो गया, वैसे टाइप ये यहां पे दिख गया मतलब सेट। कैन नॉट बी डिटरमाइंड फर्स्ट टाइम आया मतलब सेट। ऐसे मत करो दोस्तों, ठीक है? इसी में धोखा होता है। चलो लेट्स गो अहेड। या नाउ व्हाट इज द कंपाउंडेड एवरेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन? कंपाउंडेड परसेंटेज इंक्रीज, सॉरी गाइस, इससे पहले मैं आपको कंपाउंडेड ग्रोथ बता देता हूं क्या होता है, ठीक है? ध्यान से समझना दोस्तों।
अगर सपोज कोई वैल्यू, कोई कंपनी का 2001 में रेवेन्यू था 100 करोड़, फिर 2002 में वो हो गया से 120 करोड़, एंड 2003 में वो हो गया से 150 करोड़, राइट? तो व्हाट इज द कंपाउंडेड ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट, CAGR कहते हैं, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, आप ऐसे भी कह सकते, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट भी कह सकते हो, ओवर दिस पीरियड। अब ये 2 साल का ही पीरियड है, पहले तो ये ध्यान रखो, यहां से यहां 1 साल, यहां से यहां दूसरा साल, ठीक है? तो आप क्या करोगे, इसको फाइनल वैल्यू कह दोगे, इसको इनिशियल वैल्यू कह दोगे, और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना, अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू n। तो इसमें अमाउंट की जगह पे फाइनल वैल्यू रख देनी है, प्रिंसिपल की जगह पे इनिशियल वैल्यू रख देनी है, एन की जगह पे ये कितना पीरियड है, 2 साल का पीरियड है, ये 01, 02, 03 3 साल दिखेंगे, लेकिन 1 to 2 इज 1 ईयर पीरियड, 2 to 3 इज अनदर ईयर पीरियड, सो 2 साल का ही पीरियड है। तो यहाँ पे एन आपको 2 ले लेना है और आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो आर परसेंटेज आ जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू होल रेज टू 1 अपॉन नंबर ऑफ पीरियड्स -1, और ये जो भी आता है इनटू 100 करना पड़ेगा। ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको बुक में दिखेगा, बट वो कैसे आया, इसी को रीअरेंज करके आया, इसी में आर का वैल्यू आप निकालोगे तो ऐसे फॉर्मूला बनेगा। क्या ये सबको समझ में आया दोस्तों? येस और नो लिख दो जल्दी से चैट बॉक्स में, येस और नो। यस किंजल, दैट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली। LRDI का प्लस कोर्स आ रहा है आईपी मैट में, तो 2 पार्ट में, मतलब दिसंबर तक पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा LRDI, जितना भी पढ़ना है, राइट? नहीं, जस्ट 2 days अ वीक, 2 days अ वीक, वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं जाते वो, राइट? फाइन, चलो। सो गाइज नाउ अप्लाई दैट सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर। मैं फिर से आपके लिए वो फॉर्मूला लिख लेता हूं, आर परसेंटेज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू होल रेज टू 1 अपॉन नंबर ऑफ पीरियड्स -1 इंटू 100, बाहर की तरफ इंटू 100 करना है, ठीक है? सो प्लीज टेल मी व्हाट विल बी दिस आंसर। Yeah, so let's look at the leaderboard position. Who's on the top? अच्छा, 2 क्वेश्चन मिसफायर थे तो उसको साइड में रख देते हैं। तो 12 में से मानसी के 8 है, हरिंद्र प्रताप 7, साग्निक 7, लोहित, शिवम, सुमित, अंशिता, त्रिशा, नेहा, अविनाश। ठीक है, वेर आर द रेगुलर स्टूडेंट्स, अदर रेगुलर स्टूडेंट्स? आंचल, अन्वेषिता, जिग्नेश, सुमित, व्हाई यू गाइज आर नॉट देयर? ठीक है, तो आप लोग काफी टाइम से अटेंड कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। यस गौतम, तुम लेट क्यों हो गए? राइट, चलो। तो गाइज यहां पे कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। तो फाइनल यहां पे हमें क्या पूछा था, एनुअल कंपाउंडेड परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ सी फॉर द पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? ध्यान से सुनो, राइट गाइज। अगर मैं सपोज यहां पे 100 ले लेता हूं, तो 2000 से 2002 पूछा है, कहने से ये 121 आएगा।
अगर यहाँ पे 1000 लेते तो ये 1210 आएगा। डू यू एग्री विद दिस? ये तो कंपनी का प्रोडक्शन है। अब उसमें सी का कितना है, तो सी का यहाँ पे 100 ही लेके करते हैं गाइस, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, 100 ही लेते हैं। तो सी यहाँ पे 20 था और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30% ऑफ दिस वन, कैन आई से इट विल बी 36.3। डू यू एग्री विद दिस? 30% ऑफ 121 इज 36.3। तो हमें ये देखना है कि भाई ये 20 से 36.3 ये क्यूमुलेटिव ग्रोथ कितना परसेंट का हुआ, व्हाट इज द सीएजीआर, राइट? तो मैं फिर से वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, आर परसेंटेज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू यहां पे हो जाएगा 36.3 अपॉन इनिशियल वैल्यू 20 रेज टू 1/2 माइनस 1 इंटू 100। अब यहां पे चैलेंजिंग पार्ट है ये वाला फाइंड करना। तो गाइज ये कितना आ जाएगा आपका, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी लाइक 1 पॉइंट, ये कितना आएगा यहाँ पे 362 का हाफ कितना होगा 181, सो दिस विल बी लाइक 182 और 181 और समथिंग, और उसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, -1 करना है, राइट? अब मैं जब भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट आता है मुझे 1.82 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 182 अपॉन 100 समझ लेता हूं। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा दोस्तों, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10, एंड 182 का स्क्वायर रूट कितना आता है, तो कहने से 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है, तो ये 13 और 14 के बीच में आना चाहिए, समथिंग लाइक 13.5 डिवाइड बाय 10 किया तो ये कितना आ गया 1.35 अप्रोक्सीमेटली आ गया। देखो ये हमने काफी क्लोज आंसर निकाला विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज किए बिना हमने ये निकाला, करेक्ट? तो यहां पे बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.35 माइनस 1 इन 200 तो करना ही पड़ेगा। सो फाइनली ये कितना आ गया 35% आ गया कि नहीं अप्रोक्सीमेटली। सो यहां पे हम अगर इसको फाइंड करेंगे तो ये 35% आ जाएगा। अभी क्लियर दोस्तों? ठीक है, मैं यहां पे जस्ट लिख देता हूं कैलकुलेशंस ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो आप अगर बाद में ये देख रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि इसका कैलकुलेशन हमने नेक्स्ट स्लाइड पे किया है, ठीक है? 121 का 30% सौम्या, 121 का 30%। आज 5 बजे आईपी मैट का भी क्लास है, सो आई एम जस्ट रशिंग फॉर दैट। ये कंप्लीट ही करके हम सीधा आईपी मैट में मिलेंगे। जो आईपी मैट वाले स्टूडेंट है प्लस क्लास है ना, फिर 6 बजे यूट्यूब पे, फिर 7 बजे वापस आईपी मैट का प्रोबेबिलिटी का क्लास है, राइट? तो आज बैक टू बैक सेशंस है। आई एम जस्ट सिटिंग हियर switching from one class to another class, right? Okay, now this is a nice question. Sure, इसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा आपको थोड़ा, प्लीज टेक योर टाइम गाइस, कोई इशू नहीं, थोड़ा सोच के करना। अगर आप ये क्वेश्चन टैकल कर लेते हो मतलब यू आर थ्रू, ठीक है? दो मिनट है, जल्दी दे दो, 2 मिनट ही है, जल्दी दो। गाइस थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आप फिगर आउट कर सकते हो, नंबर्स इजी है इसमें।
Yeah, just a second. चलो, सो या गाइस, इसको कैसे करेंगे मैं जल्दी से बता देता हूं इसको. देखो, द प्राइस ऑफ डी वॉज रुपीज 150 MT इन 2002. द सेल रेवेन्यू कंट्रीब्यूटेड बाय डी इन 2002 विल बी व्हाट, हाउ मच. अज्यूम दैट ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वर सोल्ड. ठीक है. अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका इसलिए ज्यादा होगा कि अगर मैं इसको 100x लेता हूं तो गाइज ये कितना हो जाए, सॉरी, इसको मैं यहां पे अभी 1000x लेता हूं. ठीक है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी 1000x, तो हर साल 10-10% इंक्रीज होगा. तो ये कितना हो जाएगा, 1331x हो जाएगा. डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो आपको एक चीज और बताइए, इट इज नोन दैट द प्रोडक्शन ऑफ सी इन 2003, सी इन 2003 मतलब 20% ऑफ दिस वन कितना आएगा गाइस, इसका डबल कर दो 266.2x. एंड प्रोडक्शन ऑफ ए इन 2001, ए का 2001 में मतलब 23% ऑफ दिस वन, ये कितना आ जाएगा गाइस? व्हाट इज 23% ऑफ दिस वन? हाँ, Z8 क्या है भाई, क्या लिख रहे हो सौम्या? हाँ, 253 आएगा. तो ये 253 आ गया. इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 13.2x आएगा, विच इज गिवन एज 1320, विच इज 1320. तो कैन आई से x यहां पे 100 होना चाहिए, क्योंकि 13.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आएगा, राइट? तो 2002 में यहां पे देखेंगे तो 1210x होगा, मतलब ये कितना हो गया, 1210 इंटू 100. इतना मैट्रिक टन का प्रोडक्शन था, इतना एमटी का प्रोडक्शन था. और हमें किसका पूछा है, डी का. तो डी विल बी 20% ऑफ दिस. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1210 इंटू 100 का 20 ले लो तो 20 आ जाएगा. इतना डी का प्रोडक्शन था, डी प्रोडक्शन इन 2002. ठीक है. और इनटू हमें क्या करना है, 115 कर देना है. प्लीज डू दिस कैलकुलेशन एंड यू विल गेट आंसर एज ऑप्शन ए. देखो, 1210 इंटू 20 इंटू सॉरी 150 करेक्ट. तो ये आपका आएगा 363 एंड देन फ्यू जीरोस एट द बैक. हैव यू ऑल अंडरस्टूड गाइस? क्या ये समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया एक बार वापस देखता. अभी हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि ये क्लास खत्म हो चुका है, तो हम कल के क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे. तो मैं ये क्वेश्चन वापस कल कराऊंगा, ठीक है, राइट? तो ये क्वेश्चन हम कल वापस करेंगे. तो प्लीज बी देयर टुमारो ऑल्सो एंड कीप लर्निंग. ज्वाइन मी एट 6 PM. Till then, yeah, keep learning, guys. Don't forget to like the session and please share it with your friends. Okay, bye bye, take care.